Assalamu alaikum, good evening, namaste and sat sri akal, as our NIF slogan goes. Welcome everyone to this meeting of NIF on board. Different kind of session today. After Eid, this is going to be our second successful event, inshallah. First of all, let me wish you all good, and I hope all of you are getting back to normal with the post-lockdown scenario after Eid. I think things are getting better, but yes, everyone has to be safe and careful so that we continue this trend of being open and try to go back to normalcy. And I also hope and wish that everybody enjoyed the Eid program and also received their Eid gifts. A few of them are not present in the kingdom or not available to deliver. I think they are still in the waiting. So let's begin with our meeting today. We are having a different kind of a session. Someone said that coffee did not know that it tasted so good till it met milk and sugar. So it is said, if we blend with the right kind of people, meet them and blend with them, we become a different person, a better person. And this quest of NIF is in that direction. We have invited a very, very renowned personality who's, I mean, it's difficult to describe, but no one needs an introduction for him. And we are going to definitely benefit in different ways from this interaction with him. I'm talking about Ram Punyani, who is our guest speaker from India today. A veteran in human rights, biomedical engineer by qualification and profession. 27 years of his service to the IIT is known to everyone in different capacities. The award winner in the areas of service and human rights activism. As Nelson Mandela said, to deny human rights to someone is like denying the humanity to that person. So I think... just a minute. Mr. Ram Punyani has just logged in. So let me just welcome him. Dr. Ram, welcome to NIF platform. Thank you very much for joining us. And we will let you have your formal welcome in a few minutes. Carry on, Singh Saab. My pleasure to join. Carry on, Singh Saab. Right. Dr. Ram, welcome. And I was just, let me continue with what I was telling about Dr. Ram. He's not, it is said that you want to know about famous people, one way of today's world is to go and look at Wikipedia. And when you go to Wikipedia, if you need to read about him, you will be impressed, boggled up. And you will wonder how one person can do so many roles, wear so many hats, and do justice with everyone. He's a leader, a speaker, a doctor, a social activist, a human rights activist, and he has been dedicating his time. He's an epitome of human rights activism and secularism promoter in India and wherever he goes. So he's, जैसे कहते हैं ना कि उनका तारुफ का कोई जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है. I think everybody knows Dr. Ram Punyani through his work. His personality is worth interacting with, following, and getting lessons from him. So we are lucky today that we have Dr. Ram with us, and Dr. Saab will be joining us with his speech in a while, and he will be introduced formally by our Mr. Mohammad Asifuddin, and I'll hand over the podium now to our president. I think many of our guests are in, and let's get going with the meeting. President Saab, may I request you to come to the screen and start the program formally. Azizur Rab Saab, our president, NIF president. Thank you, Singh Saab. Thank you very much. Now let me again formally welcome to all the NIF members and their distinguished guests to this platform. I'm really privileged and happy today, extraordinarily, to welcome Mr. Ram Punyani, because what we used to listen only on his on YouTube's. आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं
उनको देख रहा हूं, उनको सुनूंगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके जरिए डॉक्टर साहब को तक हम लोग पहुंचे हैं, मैं उनका भी जिक्र करता चलूं कि हमारे एक बहुत ही सीनियर अलीग डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब हैं, जो यहाँ पे किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और लकली आई केम टू नो ओनली लास्ट वीक और 10 days बैक कि डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब वाज द फर्स्ट PhD स्टूडेंट ऑफ राम पुनियानी। So we are also lucky to have the first student of Ram Punyani as PhD with us. Dr. आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को अरेंज कराया। और राम पुनियानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी दावत कबूल की, आप आए। आज हम सबको आपको सुनने का मौका मिलेगा। आपसे हम लोग जो भी बेनिफिट्स हासिल करेंगे या जो चीज हम लोगों की समझ में आएगी, हमारे गेस्ट उससे बहुत ज्यादा मुतासिर भी होंगे। और हमारी समझ से कि हम लोग जब ये सेशन खत्म करेंगे, उसके बाद सेशन होगा, उसमें जो हमारे डाउट्स होंगे वो आप क्लियर करेंगे। तो अगेन, यू आर वेलकम टू NIF प्लेटफॉर्म, and I am welcoming all the members and their guests on this platform. Now, I will request humbly to Dr. Mohammad Asif Saab to introduce Ram Punyani formally. Dr. Mohammad Asif, Professor, King Abdul Aziz University. थैंक यू वेरी मच जनाब सदर मोहतरम साहब, अज़ीज़ुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सिंह साहब ने भी कहा, एक्चुअली मुझे एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करने का एक मौका हासिल है, इस वक्त एक अवसर प्राप्त है जो हकीकत में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरी मुराद प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं, जो आज शाम हमें संबोधित करेंगे, कि उसके के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि बताया अभी हमारे सदर साहब ने, almost 30 years ago I became acquainted with Professor Punyani, who tremendously contributed to my career and challenged me to be what I am today. Therefore, I stand a live witness of his thoroughness, integrity, and ethical purity, to name a few of the many distinguished elements of Professor Punyani's past and present. He rightly deserves the couplet, "मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं." Professionally, many of you may not be knowing, but I think when I was talking to our Sadar Sahib, he said that he didn't know that Professor Punyani is MBBS and MD. So Professor Punyani is an MBBS and initially served as chief physician at IIT Bombay Campus Health Center before being appointed as assistant professor in the School of Biomedical Engineering at IIT Bombay. Relatively at faster pace, he was promoted to associate and then to full professor much before his retirement, so which he really deserved. Professor Punyani presently is the chairman, Center for Study of Society and Secularism, Mumbai. He is associated with various secular initiatives and has been part of various investigation reports on violations of human rights of minorities. He has been conducting workshops and delivering lectures in different parts of the country on the themes related to the threats to democracy, the agenda of communal politics, myths about minorities, and politics of terror, and paths to peace and justice. He is an accomplished writer with several published works to his credit. As a professional, at the time of when he was a professor, as a professor of biomedical engineering, he published many hundreds of scientific and research articles, including books on special topics, such as Applied Clinical Hemorrhology is one of those, which was co-edited by a Japanese professor, Hideyuki Nimi, at that time, back in 1998.
His other literary work pertaining to his post-retirement activities includes books like Caste and Communalism, Communal Politics, Facts versus Myths, Deconstructing Terrorist Violence, Indian Nationalism versus Hindu Nationalism, and Communalism Explained. Professor Punyani has bagged various awards as well. For example, Indira Gandhi National Integration Award in 2006, National Communal Harmony Award in 2007, Mukundan C. Menon Award in 2015. He also writes weekly columns on issues related to secular values and defense of human rights. आखिर में सर की एक ह्यूमिलिटी की एक मिसाल देकर, उनकी एक विनम्रता की एक मिसाल देकर मैं अपनी इस्तकबालिया को खत्म करना चाहूँगा। एक बार हम सर से बात कर रहे थे और गुफ्तगू के दौरान सर ने कहा कि कोशिश तो हम कर रहे हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। जाहिर है हम इंसान हैं, मायूसी होती है, हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन सर जिस बज़्म में सागर न हो, सहबा न हो, न और न खुम हो, ये हमारी हालत, ये हमारे मुल्क की हालत इस वक्त है कि जिस बज़्म में सागर हो, न सहबा हो, न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। वाह वाह वाह, बहुत। So we are highly privileged to have this great opportunity to listen to you this evening. On behalf of all gathered online and hooked to this Zoom platform, I welcome you, sir, to this social media gathering of North India Fraternity Forum. Kindly enlighten us with your talk on the topic communal harmony with reference to secularism in India. You are welcome, sir. Thank you. Friends, thank you very much for inviting me. I am really overwhelmed by the generous welcome and the generous introduction. So before I begin my topic, my first question is it okay if I talk in Hindi? बिल्कुल, Actually, both. बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो दोस्तों, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत से मुझे इनवाइट किया और इतनी जेनरसिटी से मेरा स्वागत किया। और मेरा जो पहला पीएचडी स्टूडेंट है वो आपके साथ ही है, वो भी उनसे काफ़ी लंबा मेरा ये इंटरेक्शन रहा आईआईटी में। तो खैर, मैं वैसे 93 से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एरिया में मेरी रुचि, वैसे तो मैं सोशल इश्यूज में थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहता था, पर ख़ास तौर से 6 दिसंबर 92 को जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसके बाद मुझे लगा ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ केवल सतही सुपरफिशियल मामला नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है। और वहाँ से मैंने फिर ये मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों को कोशिश की। तो मेरे जहन में एक बात आई कि इंडिया तो है ही, इंडिया में समस्या तो है ही, पर हमारे पड़ोसी मुल्कों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जहाँ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक प्रकार का परसिक्यूशन, उन पे एक प्रकार का अत्याचार लगातार होता है। जैसे मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा 2013 की। आपको याद होगा 2013 के शुरुआत में मुझे पढ़ने में आया कि पाकिस्तान में लाहौर में क्रिश्चियन लोगों की बस्ती को जलाया गया, कई क्रिश्चियन मारे गए। बहुत दुख हुआ सुन के, पढ़ के। 3 महीने बाद पढ़ने में आया कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में कई ऐसे गांवों को जलाया गया जो मुसलमान मेजॉरिटी के थे। और मेरे दुख का अंत यही नहीं था, 3-4 महीने बाद पढ़ने में आया कि बांग्लादेश की हिंसा में बहुत सारे हिंदू मारे गए। तो यहाँ सवाल हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं है, इस बात को जरा नोट कीजिए। सवाल मजहब और मजहब के नाम के पॉलिटिक्स का है। ये इस बात को मैं पहले अंडरलाइन करना चाहूँगा कि मेरे लिए मजहब जो है वो मोहब्बत का दूसरा नाम है। मोहब्बत किससे? समाज से, समाज के लोगों से, उसका नाम मैं मजहब समझता हूँ। और मजहब के नाम की जो सियासत होती है
वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत पैदा करके आगे चलती है। तो खैर, मैं अभी थोड़ा सा इंडिया पे फोकस करूंगा। हमारे इंडिया के ही प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। इंडिया में खास तौर से 2 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पर ज़्यादा प्रकार के जो जुल्म हुए हैं, मैं थोड़ा फ्रैंकली बात करूंगा, गोलमाल बात नहीं करूंगा। तो एक तो उसमें मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा हुआ है और दूसरा क्रिश्चियंस पे हुआ है। और ये मैं मानता हूँ, इस बात को ज़रा नोट कीजिएगा कि भारत में दंगों का एक सिलसिला करीब 90 साल से चल रहा है। फिर पिछले 30 साल से ये दंगों का सिलसिला पहले से बढ़ गया है। मेरी ये समझ है दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं, पहली बात। और इसके सपोर्ट में बहुत सारा एकेडमिक वर्क है, बहुत सारे कमिटीज की रिपोर्ट है वगैरह वगैरह, वो मैं आपके सामने अभी तो नहीं रख सकता इसके बारे में। तो एक, दंगे करवाए जाते हैं। दूसरे, दंगे इसलिए करवाए जा सकते हैं क्योंकि समाज में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जाता है। नफरत का माहौल ये जो पैदा किया जाता है वो कुछ गलत धारणाओं के आधार पे, जिसको अंग्रेजी में शब्द है मिथ्स, स्टीरियोटाइप्स, बायसेस, यानी जो मिथक वगैरह का करके वो किया जाता है। और वैसे देखा जाए तो पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूसरी कम्युनिटी के बारे में पैदा करना, उसके खिलाफ नफरत पैदा करना, फिर दंगे करवाना, और उससे कुछ लोगों का पावर, एक्चुअली ये सब पूरा खेल पॉलिटिकल पावर का है। कुछ लोग अपने पॉलिटिकल पावर में पहले से मजबूत हो जाते हैं। तो भारत की बात की जाए तो क्या भारत हमेशा ऐसे से था? तो भारत हमेशा ऐसे से नहीं था। पहले तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए, पहले एक अलग प्रकार का सिस्टम था, बादशाहतें थी, किंगडम्स, राजाशाही थी। अभी हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। डेमोक्रेसी का भी एक अपना दूसरा लॉजिक होता है। तो भारत में ये जो नफरत और दंगों की शुरुआत, ये वास्तव में होती है अंग्रेजों के आने के बाद। इस बात को मैं सिद्ध करूंगा कि पहले भी यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज थी, हिंदू थे, मुसलमान थे। और ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इंडिया उन देशों में है जहाँ दुनिया के प्राय सभी धर्म अपने ओरिजिन होने के थोड़े दिन बाद, थोड़े सालों बाद यहाँ आए। जैसे हम, हिंदू धर्म तो यहाँ का ही है, जिसको सनातन धर्म कई लोग कहते हैं। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म यहाँ उनका उदय हुआ। पर आपको सुन के आश्चर्य होगा कि क्रिश्चियनिटी, जिसको यहाँ के लोग विदेशी धर्म मानते हैं, क्रिश्चियनिटी यहाँ AD 52 में आई। और इस्लाम जो भारत में आया वो 7वीं 8वीं शताब्दी में आया। अब इस्लाम को कई बार जोड़ा जाता है कि भाई मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेकर आए, उनसे जोड़ा जाता है। पर मैं आपको बता दूं कि भारत में जो इस्लाम आया वो सबसे पहले अरब व्यापारियों के माध्यम से आया। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि भारत की पहली मस्जिद जो बनी वो दिल्ली में नहीं बनी जहाँ मुसलमान राजाओं ने राज किया, वो बनी थी केरल में चेरामन जुमा मॉस्क, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद और मेरे ख्याल से दुनिया की भी पुरानी मस्जिदों में से एक। तो खैर, यहाँ इस्लाम आया, कैसे आया? अभी आज तो उसके खिलाफ बहुत प्रचार किया जाता है कि भाई ये आक्रामक रिलीजन है, टेररिस्ट इसमें होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ अरब देशों से व्यापारी आए, व्यापार करने के लिए आए, यहाँ की चीजों को खरीद के ले जाते थे, वहाँ की चीजों को यहाँ बेचते थे। मेल जोल से इस्लाम भारत में बढ़ा। और उसके बाद मैं आपको एक और दूसरी बात बता दूं कि राजा लोग धर्म नहीं फैलाते। प्लीज नोट दिस पॉइंट। ये कई बार मैं आज एक फेसबुक पोस्ट और डालूंगा कि औरंगजेब के बारे में क्या हुआ, क्योंकि उसी को सबसे ज्यादा खराब माना जाता है। पर राजा लोगों का मुख्य उद्देश्य रहता है राज्य करना, राज्य का विस्तार करना और संपत्ति को बढ़ाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। पर हाँ, हर एक नियम का एक अपवाद होता है। देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल। एक राजा हुआ है जिसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है और उसका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म फैलाया है तो आप सब जानते होंगे, बुद्ध धर्म फैलाया। तलवार की नोक पर या प्यार के आधार पे, प्यार से अपने प्रचारकों को फैमिली मेंबर्स भेज के बढ़ाया। तो भारत में इस्लाम कैसे फैला? तो भारत में इस्लाम कैसे फैला, इसका बहुत डिटेल में जो स्टडी किया तो उसमें
आखिर में मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो वाक्य लगा वो भारत के एक महान स्वामी जी का है, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपने कलेक्टेड वर्क्स के वॉल्यूम 3 में, जो 1979 में आया था, उसमें लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए, वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और ये जो इस्लाम धर्म भी फैला, ये कोई इनके द्वारा फैला, वह सूफी संत। भारत में 2 महान परंपराएं रही हैं, जिनके बारे में वक्त मिला तो मैं डिटेल में बात करूंगा। एक रही है भक्ति परंपरा। आज मेरे ख्याल से संत कबीर जी की बरसी है, उनको जरूर याद कीजिएगा, उनके मूल्यों को याद कीजिएगा। और याद कीजिएगा, संत कबीर को मानने वाले केवल हिंदू नहीं थे, उनको हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी मानते थे। I think we have some connectivity भी जाते problem. हैं कई चीजों को लेकर। तो प्रेमदेव के गीतकार हैं, ए.आर. रहमान उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ये नाम उनके पैदाइशी नाम नहीं है। क्या उसामा बिन गलत? एक्चुअली उनके अंदर की समस्या थी, अशांति थी, शांति की तलाश में निकले, एक सूफी संत से पर रूल किया। तो इस्लाम के फैलने का एक तरीका, उसके भी डिटेल में जाया जा सकता है। दूसरा, 92 की मैं बात कर रहा था, जब मैं आईआईटी में था, बाबरी मस्जिद शहीद की गई, कहा, और उसके साथ साथ एक बात बहुत पॉपुलर हो गई कि ये मुसलमान राजा आए, इन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। उसमें एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हर एक टॉपिक अपने आप में पूरा लेक्चर है जिसका मैं रेफरेंस आपको दे दूंगा, पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे भारत में सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी राजा औरंगजेब को कैसे कहा जाता है, वैसे पाकिस्तान में उसको सबसे महान राजा माना जाता है। ये तो पहले एक बात ख्याल कीजिएगा। अब ये औरंगजेब ने काशी में, मथुरा में मंदिर गिराए, सही बात है, कारण पे मैं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर पट्टा भी इसी तरह मैया की किताब फेदरसन स्टोन में देखिएगा। इसी औरंगजेब के ऊपर एक और किताब है डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की, वो बताती है कि औरंगजेब ने कैसे सैकड़ों मंदिरों को दान दिया। मेरी मेमोरी तो उतनी अच्छी नहीं है मेरी उम्र के हिसाब से, पर 3 मंदिरों का मैं नाम आपको बताऊंगा जिसको औरंगजेब ने बड़े दान दिए। आसाम में गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी का मंदिर, मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल का मंदिर, और उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को, ये 3 मंदिर मुझे याद है, और भी ऐसे बहुत मंदिरों को दान दिए। तो मंदिरों को तोड़ा गया राजाओं द्वारा। और ये भी बता दूं, कई बार हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों को तोड़ा। और उसमें हिंदी की एक महान किताब है कवि कल्लण की, उसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में कवि कल्लण लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने अपने राज्य के दौरान एक नए ओहदे का निर्माण किया। इस ओहदे का नाम था देवोत्पतन नायक। ये थोड़ा कठिन शब्द है मेरे लिए भी, ये 3 शब्दों से बनता है, देव, उत्पतन, नायक, यानी वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। आगे जाके लिखते हैं, भाई वही मूर्तियां उखाड़ना जो सोने चांदी की बनी हो, वही मूर्तियां उखाड़ना जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हो। तो ये हिंदू राजा के भी मेरे पास कई उदाहरण हैं जिन्होंने मंदिरों का ध्वंस करवाया। तो इसके पीछे सत्ता थी, संपत्ति का लालच था, तो इसको चुन चुन कर वो उदाहरण पकड़े गए जहां मुसलमान राजा ने मंदिरों को तोड़ा, और इसको कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी क्या है? कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास को राजा के धर्म के चश्मे से देखना। राजा लोग राज्य क्यों करते थे? सत्ता और संपत्ति, किसको ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? राजा के धर्म पर। और ये कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी भारत में कैसे आई, इसके पहले जरा याद रखिए, और आपने ये भी देखा होगा कि 1880 विद्रोह की चिंगारी जिसने लगा, का नाम था मंगल पांडे।
1857 की लड़ाई का नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के जो साथी थे, हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने सोचा होगा भारत पर हमें राज करना है, तो यहाँ हमें कौन सी नीति लगाना पड़ेगा, फूट डालो और राज करो। और वहां से इतिहास की इस प्रकार की समझ को गहरा किया गया। जैसे एक उदाहरण दे दूं, अभी बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी अभी बाबरी मस्जिद की जमीन को समतल किया जा रहा है, तो वहां कई बुद्ध अवशेष जो बुद्ध संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो भी मिल रहे हैं। तो इतिहास को हम कहाँ तक ले जाएंगे वो अपने आप में एक सवाल है। और इसमें बाबरी मस्जिद के इतिहास के बारे में भी एक बात आपको बता दूं, जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया फूट डालो और राज करो, तो उन्होंने अपनी लिखावट में जैसे बाबरी मस्जिद के वर्णन में ये तो कहा ये मस्जिद है, यहाँ है, वहां है, और फुटनोट में डाल दिया कि शायद यहाँ पहले मंदिर रहा होगा। और वहां से फिर हिंदू मुसलमानों के बीच में एक विवाद खड़ा हो गया। अब ये विवाद जैसे मंदिर के बारे में हुआ जाता है, तो आज के समाज में इन चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के किया। तो क्या पहले हिंदू मुसलमान ये दोनों राजा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे? तो पहले हम हिंदू मुसलमान राजाओं की बात करते हैं। मैं इस बात से पूरा असहमत हूँ कि ये कहना कि एक समय मुसलमानों का शासन था। मुसलमानों का शासन कभी नहीं था, मुसलमान राजाओं का शासन था। और उसमें भी मैं करेक्टिव कर दूं, मुसलमान राजाओं का शासन अकेला नहीं था, पूरे भारत में नहीं था। और मुसलमान राजाओं के शासन में भी उनका जो साथ दे रहे थे उनके बड़े बड़े हिंदू अधिकारी, ऐसे ही हिंदू राजाओं के साथ भी जो बड़े अधिकारी उनका साथ दे रहे थे उनमें कई मुसलमान थे। सिर्फ दो उदाहरण आपको दे दूं, अभी आपको पता होगा उत्तर राजस्थान में पिछली बार भाजपा सरकार आई तो उन्होंने वहां के इतिहास की किताबों को बदलना चालू कर दिया। और इतिहास की किताबों को बदल के उन्होंने कर दिया कि भाई हल्दी घाटी में जो लड़ाई हुई थी अकबर और राणा प्रताप की, उसमें अकबर हार गए, राणा प्रताप जीत गए, ऐसा उन्होंने किताब में डाल दिया। अब खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकबर जीता या राणा प्रताप जीता, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है जब इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताया जाता है। क्योंकि अगर आप हल्दी घाटी जाकर देखें, हल्दी घाटी का यानी इतिहास देखें, तो हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर खुद नहीं आए थे। अकबर की तरफ से जो आए थे उन प्रधान सेनापति का नाम था राजा मान सिंह। मान सिंह कौन थे? अकबर के प्रधान सेनापति। और राणा प्रताप का जो साथ दे रहे थे उनका नाम था हकीम खान सूर। ख्याल कीजिए दोस्तों, दोनों तरफ हिंदू है, यस, दोनों तरफ मुसलमान है, यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए है या सत्ता के लिए? ये लड़ाई सत्ता के लिए। पर इसको धीरे धीरे करके ऐसा एक पिक्चर किया गया कि जैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई रही। यहाँ मैं आपको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण अवलोकन बता दूं। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय इतिहास में जो मुख्य विरोधाभास रहा है वो बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच में रहा है। और जो आज जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इतिहास को लाया और सांप्रदायिक ताकतों ने उसको उठाया, उसमें हिंदू मुसलमान के अंतर विरोध को सबसे प्रमुख स्थान दिया। जैसे मैं ये बात कर रहा था अकबर के बारे में, आपको याद होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में 2 नवरत्न ऐसे थे जिनका नाम आपको याद होगा, जो मुसलमान नहीं थे। एक का नाम राजा बीरबल, दूसरे का नाम राजा टोडरमल। ऐसे ही औरंगजेब के प्रोफेसर अथर अली अपनी किताब द कंपोजिशन ऑफ मुगल डायनेस्टी में बताते हैं कि औरंगजेब के दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या 34% हो गई थी। और उसमें 2 राजा का नाम आपको याद होगा, एक राजा मिर्जा राजा जय सिंह और दूसरे जसवंत सिंह। ये दोनों औरंगजेब के दरबार में इनका बहुत ऊंचा ओहदा था। तो पर बात ऐसी थी क्या? बात दूसरी तरफ से भी थी। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हम शिवाजी महाराज का आदर करते हैं,
और शिवाजी महाराज और अफजल खान के नाम पर कई बार दंगे कराए जाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जब शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुठभेड़ हुई तो उस समय शिवाजी महाराज को जिस व्यक्ति ने वाघ नख ले जाने की सलाह दी थी उसका नाम था रुस्तमे जमान। और जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट में वो वाघ नख डाला, अफजल खान मरने पे आया, तो अफजल खान की तरफ से जिस व्यक्ति ने आकर शिवाजी पर आक्रमण किया उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। आप टीपू सुल्तान को देखिए, उसके बारे में भी बहुत प्रोपेगेंडा होता है, पर टीपू सुल्तान के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री में आज की लैंग्वेज में कह रहा हूँ, प्रधान एडवाइजर थे, उनका नाम था पूर्णैया। पूर्णैया एक उच्च अधिकारी थे जो हिंदू थे, जो टीपू सुल्तान के साथ ये बात करते थे। खैर, अब यही टीपू सुल्तान के बारे में अगर आप देखें तो शंकराचार्य का आदर करते थे, कामकोटि पीठम के शंकराचार्य को वो जगत गुरु कहते थे, और इस प्रकार की परंपरा भारतीय समाज में रही। मिलजुल रहा। क्रिश्चियंस संख्या में थोड़े हैं, और ये बता दूं कि क्रिश्चियंस आज 2.3% है। उन्नीस 50 साल पुराना है। आज 2 भागों में कई मुसलमान राजाओं ने राज किया, और आज मुसलमानों का परसेंटेज है 14.2 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001। खैर, ये तो हो गई राजाओं की बात। तो क्या आम लोग लड़ते रहते थे? अरे, आम लोगों में, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस में प्रेम मोहब्बत थी। उसका बहुत सुंदर चित्रण कई हमारे कविताओं में मिलता है, कई साहित्य में मिलता है। उसको मैं साहित्य से ही शुरुआत करूंगा। जैसे आप जानते होंगे, भारत हिंदू परंपरा में भगवान कृष्ण का एक बहुत ऊंचा स्थान है, और उन पर बहुत सारे कवियों ने प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हैं। उसमें सूरदास भी हैं, मीराबाई भी हैं। सूरदास और मीराबाई हैं, साथ में ही रसखान और रहीम भी हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण की तारीफ में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। संगीत की बात कीजिए, संगीत की बात कीजिए तो आपको एक बहुत बड़े उस्ताद का नाम मैं बताता हूँ। उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे बैठकर, हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने अपने संगीत का सृजन किया। ये मेल जोल की परंपरा संगीत में, आर्किटेक्चर में, कपड़ों में, खाने पीने में हर जगह आई। तो एक मैं आपको मजेदार बात बताना चाहता हूँ। आप लोग तो उधर हैं, पता नहीं आप लोग बिरयानी का मजा लेते हैं कि नहीं, पर यहाँ तो बिरयानी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। और बिरयानी का जब मैंने पता किया बीच में, तो पता चला बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान से आई, यहाँ हमने उसको और स्वादिष्ट बना दिया, वो बन गई बिरयानी। इसीलिए हमारे वेदों में एक वाक्य है, आ नो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वता। क्या मतलब? दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार, अच्छी से अच्छी चीजें मुझ तक आए, मैं उनको स्वीकार करूंगा। तो और जैसे मैंने पहले बताया, भारत की मेल जोल की सभ्यता का उच्चतम बिंदु हमारे धर्म की परंपरा में मिलता है। और एक तरफ है भक्ति परंपरा, जो हिंदू धर्म के छतरी में आती है, और इस हिंदू परंपरा में कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, इतने जो महान संत हो गए हैं, उन्होंने मानवता की बात की। ऐसे ही इस्लाम की छतरी में जो आते हैं, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज और बहुत सारे सूफी संत, उन्होंने भी इंसानियत की बात की, आम लोगों के बीच में बात की। ये हमारा मध्ययुगीन काल। अब इसमें गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? धर्म के नाम का पॉलिटिक्स कैसे आता है? ये आता है अंग्रेजों के आने के बाद। आपको याद, जरा मन में रिवाइज कीजिए, अंग्रेज लोग भारत में क्यों आए? अंग्रेज लोग भारत में आए व्यापार के नाम पर, फिर उन्होंने शासन किया, और शासन करने के बाद यहाँ की संपत्ति को लूट कर ले गए। ये बात आपको बता दूं, कई मुसलमान राजा आए, लूटपाट करके ले गए। कई, और उस जो राजा लूटपाट करके ले गए वो एक थे, वो तैमूर होगा, महमूद गजनवी होगा, वगैरह वगैरह। पर जो मुसलमान राजाओं ने यहाँ राज किया,
उन्होंने यहाँ राज किया, यहाँ के होकर रह गए, इसी मिट्टी में खाक हो गए। वो यहाँ की संपत्ति कहीं नहीं ले गए, उन्होंने यहाँ राज भी किया और यहाँ की संपत्ति को लेकर ले गए। और ये राजनीति को समझने का, अंग्रेज लोग आए, हमारी संपत्ति लूट के ले जाना था, तो 3 परिवर्तन वो लाए। पहला परिवर्तन कौन सा? मैं मुख्य बातें कह रहा हूँ। पहला परिवर्तन रेल, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए रेलवेज। दूसरा परिवर्तन, जैसे ब्रिटिश वाइसराय कोलकाता में रहता था, उसको पूरे देश के ऑफिसर्स से लेटर्स भेजना पड़ता था, तो उसके लिए बुलाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, इसको हम कहेंगे मेल। पहला क्या हो गया? रेल। दूसरा क्या हो गया? मेल। तीसरा वो यहाँ एक अच्छी चीज लाए, मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय व्यवस्था। और आधुनिक न्याय व्यवस्था की परिणति कहाँ होती है? जेल में। तो थोड़ा मजाक में मैं कहता हूँ, ताकि याद रहे, 3 परिवर्तन है, रेल, मेल और जेल। खैर, समाज बदला, समाज में नए प्रकार के लोग आए। और नए प्रकार के लोग कौन से आए? 3 प्रकार के लोग नए आए। पहले प्रकार के जो लोग आए, व्यापारी, उद्योगपति, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फैक्ट्रियां डाली। फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? मजदूर। वो दूसरा वर्ग अस्तित्व में आया। और तीसरा वर्ग जो अस्तित्व में आया, जिससे मेरे ख्याल से आप और मैं बिलोंग करते हैं, तीसरा वर्ग आया आधुनिक शिक्षित वर्ग। इनको हम कहेंगे उभरते हुए वर्ग, द राइजिंग क्लासेस। अब पुराने शासक जो थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनको डर लगा हमारी सत्ता कमजोर हो रही, क्योंकि ये 3 नए परिवर्तित वर्गों के आने के साथ साथ 2 और चीजें हुई। 2 और चीजें ये हुई, एक हुई शिक्षा, एजुकेशन। ये दलितों तक ले जाने के लिए ज्योतिराव फुले जैसे लोग आए। ये शिक्षा को लड़कियों तक ले जाने के लिए जो आए, उसमें सावित्रीबाई फुले और उनकी सहेली फातिमा शेख का नाम हमेशा अमर रहेगा। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन आया। तो ये जो समाज में परिवर्तन आ रहे थे, आम लोग ऊपर आ रहे। पहले नवाबी में, राजाशाही में एक अलग प्रकार की मानसिकता होती है, और यहाँ की मानसिकता में सबको एक दूसरे विचार आते हैं। तो पुराने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, उनको डर लगा कि ये समाज में क्या हो रहा है। तो जब उनको लगा हमारी सत्ता, हमारा पावर हमारे हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा पावर हमारे खतरे में है, उन्होंने कहा हमारा मजहब खतरे में है। इस बात को जरा याद रखिएगा, गांठ बांध के रखिएगा, मजहब कभी खतरे में नहीं होता। मुसलमान नवाब कह रहा है इस्लाम खतरे में है, हिंदू राजा कह रहा है हिंदू धर्म खतरे में है। जब भी कोई कहता है मेरा धर्म खतरे में है, मेरे कान में घंटी बजती है कि वो अपने पावर का सोच रहा है, धर्म के नैतिक मूल्यों का, मोहब्बत का, इंसानियत के मूल्यों का नहीं सोच रहा। और यही हुआ। तो इनको मैं कहता हूँ डूबते हुए वर्ग, द डिक्लाइनिंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। अब उभरते वर्गों में से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने, डूबते वर्गों में से कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने। और मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, मन में एक्सरसाइज कीजिएगा, इनके नाम के पैटर्न को समझ के उसका फर्क बताइएगा। एक तरफ उभरते वर्ग, उभरते वर्गों में से बने 3 मेरे प्रतीक हैं, 3 ऑफ माई आइकॉन्स। उसमें पहले हैं शहीद भगत सिंह। आपको ये नाम याद होगा उनके संगठन का, उनके ऑर्गेनाइजेशन का, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह। दूसरे भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए सोशल इक्वालिटी के लिए, जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए। और अंत में उन्होंने पार्टी की रूपरेखा, पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा जो बड़ा संगठन जिसने पूरे देश के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, इसमें मैं 4 नाम ले रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सोचेंगे, अभी तक मैंने एक एक नाम लिया और मैं 4 नाम क्यों ले रहा हूँ, तो वो भी आप सोचिएगा। 4 नाम ये है जिसने देश की आजादी का नेतृत्व, गुलाम आजाद, एनी बेसेंट, मोहनदास करमचंद गांधी। ये मैंने 4 नाम क्यों लिए? ये बताने के लिए कि आजादी के आंदोलन में सभी धर्मों के लोगों ने बराबरी से शिरकत की।
a freedom movement with equal amount of commitment. पार्टी का नाम क्या था? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी पार्टी में जाऊंगा भी नहीं, पर नाम इसका था क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि इन तीनों के नाम का जरा पैटर्न सोचेंगे? नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब ये जो डूबते वर्ग के लोग थे, राजा नवाब जमींदार जागीरदार, बाद में चलकर कुछ एजुकेटेड लोग, अपर कास्ट लोग, एफ्लुएंट लोग इनके साथ ज्वाइन हुए और उनकी भी पार्टियां बनी। और उसमें मैं 3 संगठन आपके सामने रख रहा हूँ। इनके नाम का पैटर्न जरा ख्याल कीजिएगा। पहला संगठन मैं रख रहा हूँ, व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। पार्टी का नाम आपको याद होगा, मुस्लिम लीग। दूसरे व्यक्ति जिनकी कल एनिवर्सरी थी, उन पे कल यहाँ काफी कुछ आया, विनायक दामोदर सावरकर, अंग्रेजों की जेल से छूट कर आए। कौन सी पार्टी ज्वाइन की उन्होंने? हिंदू महासभा। प्लीज नोट, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, और इसी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर एक और संगठन बना जो आज दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संगठन है, जिसको गेस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, जो आरएसएस, जो शॉर्ट में कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। तो प्लीज ट्राई टू सी द पैटर्न ऑफ नेम्स। पैटर्न ऑफ नेम्स इधर है, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ जो मुख्य चीज है इंडिया, इसमें धर्म का नाम नहीं है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी प्रकार के लोग इसमें हैं। और इधर क्या है? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। अब उभरते वर्गों के लोगों ने कहा हमको एक सुनहरा भविष्य बनाना है, वी हैव टू मेक ए गोल्डन फ्यूचर। और इसके लिए उन्होंने जो मूल्य सामने रखे, जो हमारे, इन्होंने आजादी के आंदोलन में योगदान दिया, आधुनिक भारत के बनने में योगदान दिया, और इसी में से भारतीय संविधान निकला, जिसके 3 मूल्य आप याद रखिएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और जो डूबते वर्ग के लोग थे, इन्होंने कहा वो पुराना समय था, बड़ा अच्छा था भाई, इट वॉज ए गोल्डन पीरियड। उसमें मुस्लिम लीग ने वो मोहम्मद बिन कासिम नाम के राजा को अपना प्रोजेनिटर बताया कि वहां से हमारी शुरुआत हुई। तो राजाशाही में तो क्या होता है, ऊंच नीच इज अ सेंट्रल पॉइंट, इनइक्वालिटी इज अ सेंट्रल पॉइंट। और हिंदू महासभा आरएसएस ने कहा हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब इनका फर्क समझना हो तो प्लीज एक बात, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये पुराने मूल्यों को लाना चाहता है। और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डेमोक्रेसी के नाम वाले होते हैं, वो फ्यूचर जानने की बात करते हैं, वो मॉडर्न इन द सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज गिवन इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात करते हैं। तो पुराने समय में इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से अपनी प्रेरणा ली, वो पहला मुस्लिम राजा था। फिर हिंदू महासभा आरएसएस ने अनादिकाल की बातें की। इसलिए आपको पता होगा आजकल आप कितना साइंस में, रैशनलिज्म में, साइंटिफिक टेम्पर में विश्वास करते हैं, वो आप सोचिएगा। पर समाज जब बदलता है तो उसमें, जैसे ह्यूमन राइट्स की बात की गई, जो हम शुरू के वक्ता ने कहा, ह्यूमन राइट्स की कंसेप्ट ये आधुनिक सोसाइटी के साथ आती है। नेशन स्टेट की कल्पना भी करीब 250-300 साल पुरानी है। उसके पहले किंगडम्स थी, किंगडम्स में इक्वालिटी का कोई सवाल नहीं होता। और इस कंट्रास्ट को समझना है तो मैं 2 व्यक्ति आपके सामने रख देता हूँ। एक है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको मैं उभरते वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। आपको याद होगा भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशल इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी की वैल्यूज के लिए, डेमोक्रेटिक इथॉस के लिए बहुत स्ट्रगल्स किए, और अंत में जाके उन्होंने पार्टी बनाई। उसके पहले उन्होंने जो काम किया वो था किताब को जलाना, किताब को जलाने का समर्थन करना। याद रखिएगा, उस किताब का नाम है मनुस्मृति। बाबा साहब ने सोचा होगा मनुस्मृति में जो मूल्य हैं वो शूद्र और स्त्रियों को गुलामी देते हैं, ये मूल्य मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और दूसरी तरफ
यही बाबा साहब अम्बेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। प्लीज नोट, अम्बेडकर इज लाइक दिस, बर्निंग मनुस्मृति एंड गोइंग फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सन 2000 में आरएसएस के एक चीफ बने। सॉरी, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, गेस कनेक्शन वीक हुआ है। डॉक्टर आसिफ, जरा आप कॉल कर दें उनको। Maybe he is logged in again. Sorry, technical glitch. I hope it is sorted out. Yes. Now. तो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए साइंस की वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, दे आर यूनिवर्सल and they are best represented today in the United Nations Charter of Human Rights. उनका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व यूनाइटेड नेशंस के, और वो पूरे मानवता के लिए है। उसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न ऐसा मैं नहीं मानता। खैर, पर मैं बात कर रहा था के सुदर्शन जी की। के सुदर्शन जी ने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे हो। तो देखिए कंट्रास्ट, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, प्राचीन मूल्यों को अलग करो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के मूल्यों को लाओ, भारतीय संविधान को लाओ। और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले कह रहे हैं आधुनिक बराबरी के मूल्यों को हटाओ और प्राचीन ग्लोरी रिस्टोर करो। इसीलिए ये एक बात है। खैर, मैं बाकी बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त मैंने काफी ले लिया है। अंत में एक ही बात कहूंगा, ये धर्म के नाम वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ज्यादातर पहचान के मूल्यों की बात करते हैं। मेरे हिसाब से समाज में दो प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक समस्या होती है रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और डिग्निटी, राइट्स। और दूसरे मुद्दे होते हैं आइडेंटिटी से जुड़े हुए। मेरे भगवान का जन्म यहाँ हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। दूसरा, आपको थोड़ा सा एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। अभी पिछले 6 साल में करीब 100 लोगों को लिंचिंग से मारा गया। अमेरिका में एक लिंचिंग हुई, अमेरिका में एक मृत्यु हुई, पूरा देश में टर्मोइल हुआ। यहाँ 100 लिंचिंग हो गई, हम देखते रहे, मोमबत्तियां जला के चलते रहे, कुछ नहीं हुआ। खैर, जो भी हो, ये लिंचिंग काहे के लिए हुई? ये लिंचिंग हुई गाय के नाम पर। गौ हमारी माता है, ठीक है। अब कंट्रास्ट ये है, ये 100 लोग मारे गए, उसमें दलित भी थे, मुसलमान भी थे। इसी दौरान इंडिया बीफ के एक्सपोर्ट का बड़ा एक पावरफुल कंट्री बन के इमर्ज हुआ है, ठीक है। अब बीफ की बात हर जगह हुई, पर मैंने अध्ययन किया, इस पे मेरी एक किताब भी है। और सॉरी, मैं खुद के बारे में थोड़ा बीच में बोस्ट करता हूँ, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। तो मैंने पढ़ा, स्वामी विवेकानंद का फिर से मैं ला रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था, गाय की बलि दी जाती थी। फिर प्रोफेसर DN झा, जो पूरा प्राचीन भारत के इतिहास के बड़े महान इतिहासकार हैं, वो भी कहते हैं बीफ वाज ईटन एट दैट टाइम, काउज वेर सैक्रिफाइस्ड इन द यज्ञास। ये काऊ के सैक्रिफाइस को बंद किसने किया था? किसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी?
भगवान गौतम बुद्ध। खैर, तो इसलिए बुद्ध और ब्राह्मणवाद के मूल्यों का अलग अलग चल रहा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अब कई बार यहाँ गाय के नाम पे इतना हो रहा है, एक्सपोर्ट भी खूब हो रहा है, और एक्सपोर्ट करने वाले कोई मुसलमान नहीं है। एक्सपोर्ट करने वाले आपको कई प्रकार के लोग मिल जाएंगे। मैं इसका थोड़ा सोचा, भाई ये क्या चल रहा है, बीफ का इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो गया? जिस समाज में 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, इतने लोग इलिटरेट हैं, फार्मर्स सुइसाइड कर रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, वहाँ बीफ और गाय को इतना सेंट्रलिटी क्यों मिल रही है? तो मुझे पता चला इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये केवल प्योरली राजनीतिक मुद्दा है। कैसे पता चला? वही राजस्थान में, फिर से राजस्थान में हिंगोनिया में बीजेपी की सरकार आई, बहुत बड़ा काऊ शेड बनाया। उस काऊ शेड में आप गूगल सर्च कीजिए, हिंगोनिया राजस्थान काऊ शेड, सैकड़ों गायें भूख से मर गई, कीचड़ में गोबर में डूब कर मर गई। मैं हैरान हो गया, ये क्या हो गया? इसका जवाब मैं ढूंढने निकला तो मुझे जवाब एक बड़ी अजीब जगह पे मिला, और जवाब मिला एक बायोग्राफी में। किसकी बायोग्राफी? हमारे वो एक प्राइम मिनिस्टर थे ना, जो कविताएं भी लिखते थे, याद होगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बायोग्राफी है विजय त्रिवेदी द्वारा। हार नहीं मानूंगा। अटल जी एक बार अमेरिका के टूर पे थे, लेक्चर टूर पे थे, और एक दिन लेक्चर के बाद उनको जब डिनर सर्व किया गया, डिनर लंच जो भी था, तो उनके पड़ोसी जो बाजू में जो दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा, अटल जी ये क्या हो रहा है, ये तो हमको बीफ दे रहे हैं, हम बीफ खा रहे हैं। अटल जी ने कहा, हंस दिए और कहा, तो प्रॉब्लम क्या है, ये कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, हैव ए गुड टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। खैर, ऐसे मुद्दे जो सामने लाए गए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे लाए गए, गाय का मुद्दा लाया गया, फिर घर वापसी, याद, ये भी बताया गया। इसमें मैं एक बात पूरी छोड़ रहा हूँ कि इसमें एक और बात 9/11 के बाद अमेरिका ने इसमें ऐड किया। जब ओसामा बिन लादेन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, ये जिहाद है, एक वर्ड आया अमेरिकन मीडिया की तरफ से, वो था इस्लामिक टेररिज्म। मैं इस्लाम के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर इतना कहूंगा कि इस्लाम में, जो कुरान में, एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारना पूरी इंसानियत को मारने के समान माना जाता है। तो खैर, ये हमारे यहाँ की राजनीति है, जो मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्य मुद्दे गरीबी से जुड़े हैं, बेकारी से जुड़े हैं, उनके ऊपर ज्यादा ख्याल देने के जो मुद्दे जाते हैं। बाबर विदेशी था तो कहा जाता है, पर आपको पता है बाबर को इस एरिया में आने का इनविटेशन, निमंत्रण, न्योता किसने दिया था? उसका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा ने लेटर लिखा, आप आइए, हम दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ेंगे। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एनीवे, अंत में सवाल ये उठता है कि आप लोग तो अभी जहाँ बसे हैं, आपकी अलग समस्याएं होंगी, पर यहाँ के समाज में जो नफरत फैली है, वो हमारी पूरी हिंसा का आधार है। और तो और, अभी जो कोरोना तबलीगी जमात का किस्सा हुआ, उसके बाद कोरोना जिहाद नाम का शब्द भी आ गया। और इतना भी आपको बता दूं कि तबलीगी जमात की जो मीटिंग हुई 13 से 15 मार्च तक, उसके पहले हजारों लोग विदेशों से आए जिन पर कोई उंगली नहीं उठी। नमस्ते ट्रंप नाम का इवेंट हुआ, कनिका कपूर नाम की एक गायिका आई, एक सिख प्रचारक आए, बहुत सारे लोग आए जो बाहर से आए, क्योंकि ये कोरोना तो बाहर से ही आया। उन पे कोई उंगली नहीं उठी, और उंगली उठी तो कोरोना जिहाद। और आज मुझे दुख होता है कहते हुए कि उत्तर भारत के और बाकी जगहों के कई जगहों पर जो मुसलमान गरीब सब्जी बेचने वाला है, उसको बैन कर दिया गया है कि आप हमारी सोसाइटी में नहीं आ सकते, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आखिर में सकारात्मक बात करते हुए मैं ये रखना चाहूंगा कि हमें करना क्या है। आप जहां भी हैं, आपकी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा भारतीय समाज से जुड़ा है। आपकी जड़ें वही हैं जो मेरी जड़ें हैं, और हमको एक अच्छा समाज बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा अपनी राय आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो यह दोस्तों कि आज, जैसे मैंने बताया, कि नफरत बहुत बढ़ गई है। मीडिया का एक तबका उन लोगों के कंट्रोल में है जो कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ है, और जो नफरत फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। तबलीगी जमात का इवेंट हुआ,
जिसको रवीश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया, कई लोग उसको मोदी मीडिया कहते हैं, उसने पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी कि तबलीगी जमात यानी मुसलमान यानी कोरोना फैलाने वाली, ये पूरी बात हो गई। तो ये मैंने आसपास के दोस्तों से सुना, रिलेटिव से सुना, रिश्तेदारों से सुना, ये बात यहाँ पॉपुलर हो गई। तो ये नफरत जो फैलाई जाती है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए। आपको अच्छी बात भी बता दूं कि भारत में कुछ अच्छे चैनल्स निकले हैं। रवीश कुमार खुद एक बहुत अच्छा उनका एक चैनल है, और एक प्रतीक सिन्हा है, वो फेक न्यूज को बस्ट करते रहते हैं, क्योंकि फेक न्यूज बहुत फैलाई जा रही है कि यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, किसी के नाम पे नफरत फैलाने के लिए। तो पहली बात यह है कि ऐतिहासिक तथ्यों की सच्चाई, कि मजहब तो मोहब्बत का दूसरा नाम है, ये हमारी बात का आधार होना चाहिए। और जो मध्ययुगीन इतिहास में हिंदू राजाओं के नाम पे, मुसलमान राजाओं के नाम पे नफरत फैलाई जाती है, उसकी भी सच्चाई हमें समाज में लाना चाहिए कि कैसे इनका मेल जोल भी था। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा 2 चीज़ें। एक तो महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज में वो बताते हैं कि कैसे मध्ययुगीन काल में हिंदू मुसलमानों का मेल जोल था, और इसी कड़ी में आगे उनके शिष्य जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये वो इतिहास का एक दूसरा चित्र हमारे सामने रखते हैं। तो ये एक हो गया कि समाज में सच्चाई को फैलाना। इस्लाम के बारे में आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर जरूरत इस बात की भी है कि हम जो मुस्लिम समाज भारत में कैसे बना, कन्वर्शंस कैसे हुए, मुसलमान राजाओं ने मंदिर क्यों तोड़े, उसके पीछे मजहब का कारण था या सियासत का कारण था, ये सच्चाइयाँ जो हम में से कई लोगों ने कोशिश की है, भारत के बड़े बड़े इतिहासकारों ने जो चीजें लिखी है, उसको हमने सरल रूप से सामने लाने की कोशिश की है। तो इसको एक घर घर तक ले जाने के लिए बुकलेट्स, सेमिनार्स, पोस्टर्स, ये इंडियन सोसाइटी में इसको करने की बहुत ज़रूरी है। और मैं 3 रेफरेंस आपको दूंगा जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको फॉलो कर सकेंगे। एक है हमारे दोस्त आनंद पटवर्धन का एक सीरियल, 16 एपिसोड सीरियल, जिसमें वो सांप्रदायिकता के अलग पहलुओं को लेकर चलते हैं। उसका नाम है विवेक रीजन, ये टाइटल ऑफ द सीरीज है। दूसरे हमारे दोस्त सोहेल हाशमी का एक सीरियल है हिंदुस्तान की कहानी, 10 एपिसोड हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें भारत की मिली जुली परंपरा के बारे में बात करते हैं। और तीसरा, खैर मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, उसके लिए माफी भी चाहता हूँ, मेरे YouTube चैनल पर भी मैंने ज्यादातर मुद्दों को लेकर उसमें रखने की कोशिश की है और उसको अपडेट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक, समाज में सच्चाई को फैलाना। दूसरा, ये जो मोहब्बत के पुल बनाना बहुत जरूरी है। नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में। ये नफरत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना जरूरी है, और उसके लिए हमें संत परंपरा के मूल्यों को समाज तक महत्वपूर्ण तरीके से ले जाने की जरूरत है। तीसरा, भारत की जो परंपरा थी उसमें एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, वहाँ धर्म की सीमाओं को नहीं देखना, और एक मानवता के आधार पर लोगों को जोड़ना, ये उनका एक मुख्य आधार था। उसको फिर से लाने की जरूरत है। और तीसरा, भारत में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, उनको अगर किसी तरीके से एक नैतिक बल मिले, ऐसा अगर हो सके, तो ये एक अच्छे भारत का सपना हम देख सकते हैं, जिसमें भगत सिंह के मूल्य, अंबेडकर के मूल्य और गांधी के मूल्य का मिश्रण, वो भारत बनाए जो भारतीय संविधान को एक प्रतिबद्धता से, पूरी ईमानदारी से लेकर सबकी डिग्निटी, सबके राइट्स को लेकर आगे चलेगा और एक अच्छा समाज बनाएगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस से मुझे सुना। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस आर वेलकम। Asim, to you now. I think we have sent a set of rules for question answer session, and Asim now will take over and he will conduct the question answer session. And I would request all the participants, please follow the rules as it has been sent to you 1 hour before. Asim, to you now. Unmute yourself. Unmute yourself first.
Thank you, Aziz Saab. Thank you, Professor Punyani Saab, for a wonderful lecture, and it has been a very long-awaited lecture. बहुत सारे लोग हैं जो उत्साहित हैं आपसे बात करने के लिए. लोग अब तक आपको देखते थे और YouTube पे आपकी वीडियोस और स्पीचेस को सुना, और आज गालिबन बहुत से लोगों के पास पहला बार मौका मिलेगा कि वो आपसे रूबरू हो सकें और डायरेक्टली आपसे सवाल कर सकें. So we'll start the proceedings now. I had given the rules regulations earlier on the members page. I will repeat it once again कि जिन जिन को सवाल करने हैं वो लोग जो हैं उस पे जूम पे जाके, यानी जूम के जो पार्टिसिपेंट का सेक्शन है उस पे जाके अपना रेज हैंड करें. जब आप लोग अपना रेज हैंड करेंगे तो ऑलरेडी सीक्वेंस के अंदर लाइन में आप लोग आ जाएंगे जिन जिन को सवाल करने हैं. जैसे इस वक्त वजीर अख्तर साहब ने रेज कर दिया है तो उनका मुझे नजर आ रहा है. ऐसे जिन जिन लोगों को सवाल करने हैं वो अपना हाथ वहां पे रेज करें, एंड इन द सीक्वेंस इट विल बी अपीयरिंग टू मी. और एक करके हम सबको अनम्यूट करेंगे और आप लोग अपना सवाल करिएगा. सवाल जो है बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए क्योंकि टाइम आवर्स बहुत कम है, आधे घंटे का वक्त है खाली. तो आप सबसे गुजारिश है कि सवाल जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटेल्स के साथ, एंड देन डायरेक्टली टू द क्वेश्चन विदाउट गोइंग इनटू द हिस्ट्री एंड द निटिग्रिटी ऑफ द फ्रेजिंग एंड अदर कन्वर्सेशन. और एक पार्टिसिपेंट एक ही सवाल कर सकता है. जब पुनियानी साहब उसका जवाब दे दें तो फिर दोबारा उस पर काउंटर क्वेश्चन या डिबेट जो है विल नॉट बी अलाउड, बिकॉज हमें सब लोगों को जो है वो सुनना है और उनके सारे सवाल सुनने हैं. तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. आप लोग अपने अपने हैंड्स वहां पर रेज कर लें, एंड विद इन 30 seconds I will start unmuting the first questioner. ओके, हमारे पहला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जनाब वजीर अख्तर साहब की तरफ से. वजीर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. Thank you so much. Thank you, Asim. Professor Punyani, thank you very much for this insightful lecture. We have really benefited. जैसा कि आपने कहा कि झगड़े जो हैं बेसिकली शुरू से सत्ता के लिए होते हैं, ना कि धर्म के लिए. लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया है, इसमें क्या किया जा सकता है? तो don't you think that the intellectual class of the majority community as well as from the minority community have a bigger responsibility and bigger role to play to create an atmosphere where people can really live in peace and we can have the communal harmony again and have a better future for our country? तो यही मेरा सवाल था कि क्या इंटेलेक्चुअल क्लास की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बन जाती है ऐसे माहौल में? हमने ये देखा है कि आजकल इंटेलेक्चुअल क्लास चुप हो गई है, कुछ हद तक चुप रहने लगे हैं. लोग जवाब नहीं देते. वो समझते हैं कि अगर हम खिलाफ बोलते हैं तो हम एंटी नेशनल ना हो जाएं, हमें कोई टैग ना दे दे. तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं तो केवल आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से कि नंबर एक, ये हम लोग जो इंटेलेक्चुअल अपने आप को मानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सच्चाई को हम ज़्यादा समझें, क्योंकि हमारे तक भी सच्चाई ऑटोमेटिक नहीं आती. पहली बात याद रखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम तक आती हैं वो डिस्टॉर्टेड, भ्रष्ट होकर आती हैं. तो सबसे पहले तो है खुद को एक अच्छी समझ बनाना. जैसे मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए आपको, अपनी समझ अच्छी बनाए तो हम दूसरों तक उस बात को ले सकते हैं. और उस बात की शुरुआत हमारे घर से, परिवार से, हम जहाँ काम करते हैं, हमारी जो कम्युनिटी है उससे हो. निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि एंटी नेशनल का लेबल आजकल बहुत लाखों में छापे गए हैं, किसी पे भी वो चस्पा कर सकते हैं. पर उसके बावजूद एक जगह है, जैसे एक अल्टरनेट मीडिया है, सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में बहुत गड़बड़ से ये लोग काम करते हैं. तो क्यों ना हम अपनी कैपेसिटी में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, 100 के, 200 के, और उसमें प्यार की, मोहब्बत की बातें, पॉजिटिव न्यूज को लें, और जो फेक न्यूज है उसको न्यूट्रलाइज करें. तो देखिए हर जगह थोड़ी जगह तो रहती है कि वेयर वी कैन ऑपरेट. एवरीबडी कैन नॉट बी महात्मा गांधी, राइट? एवरीबडी नीड नॉट टेक ऑल द रिस्क. पर मेरे वक्त में, जैसे मैं महीने में 30 दिन है, तो मैं 10-15 घंटे निकाल सकूं, 2 घंटे निकाल सकूं, और एक ऐसा ग्रुप बनाऊं जिससे मैं इस पे इंटरेक्शन करूं. कोई फिल्म क्लब अपने घर पे 10 लोगों को बुलाऊं, आनंद पटवर्धन का विवेक दिखाऊं. ये तो हो सकता है, इसमें तो कोई बहुत नहीं है. तो क्वेश्चन इज, brick by brick we can go up. I agree with you, task is too big, task is frightening. Even people like me get depressed at times, but we have to do whatever is possible. Like उसमें वो कहानी आप जरा याद रखिएगा, वो एक चिड़िया रहती है, चोंच में पानी लेके जाती है,
जंगल की आग बुझाने के लिए, कहती है मेरा नाम आना उसमें आना चाहिए जो आग के खिलाफ थे, इसलिए मैं ये पानी लेकर जा रही हूँ। तो ये दिस इज हाउ वी हैव टू ऑपरेट। थैंक यू पुनियानी साहब। द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम कैप्टन शाह। शाह साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर माय क्वेश्चन इज, मैं हिंदी में ही पूछ लेता हूँ। जी जी। क्या इस टाइम जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कोई इंटरेस्ट है इस एजेंडा को निगेट करने में कि नहीं है, या वो भी इस एजेंडा के साथ खुश हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग लोगों तक ये सच बात को पहुंचाने में ज्यादा अपोजिशन पार्टीज नहीं है। हम जैसे इक्के दुक्के इनइफेक्टिव लोग अपना काम कर रहे हैं, और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मास एजुकेशन में, मास अवेयरनेस में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ, इतना मैं मानता हूँ कि कई पार्टियां हैं जो पूरा ईमानदारी से सच्चाई की बात लेते हैं। अगर आप ट्विटर पे देखें, मैं जिनको मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, जैसे प्रशांत भूषण हैं, सीताराम येचुरी हैं, या उनका नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ अभी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो अपोजिशन पार्टीज में भी ये पार्टीज का प्रॉब्लम क्या है कि वो ज्यादातर कैलकुलेट करते हैं पावर के हिसाब से कि किससे हमको वोट मिलेंगे, हमारा हिंदू वोट ना खिसक जाए, हमारा मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। तो ऐसे समय पे मेरे ख्याल से, जैसे पहले हमारे दोस्त ने पूछा, इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम ये सच्चाई की बातों को समाज तक ले जा सके। पर हाँ, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम मुझे 3 पार्टियों का मालूम है जो छोटे बड़े पैमाने पे इस काम को कर रहे हैं, अवेयरनेस के काम को। अवेयरनेस के काम को एक तो कांग्रेस के पार्टी के छोटा सा सेक्शन कर रहा है, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टीज का थोड़ा सेक्शन इस पे कर रहा है, और बाकी का मुझे ज्ञान नहीं है। कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कई बार हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, उनके कार्डर्स को उस पर एक्सपोज करते हैं कि भाई ये चीजें सुनो, इसको अपने इसमें रखो। पर जितना होना चाहिए वो ड्रॉप इन द ओशन वाला मामला है। तो आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पर अपोजिशन पार्टीज को भी इस पे जागना चाहिए। अगर वो जागे इस पे, तो आई थिंक समाज में सुधार बहुत अच्छे से और जल्दी से आ सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी। The next question is from the president himself, Aziz Rauf Saab. Dr. Saab, first of all, thank you very much for this very good lecture, and बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मेरा एक सवाल ये है कि हमारा बहुत सारा डैमेज बहुत ही शॉर्ट टाइम में हुआ है हिंदुस्तान में, नुकसान बहुत ज्यादा बहुत छोटे वक्त में हो गया है, और अब हमें लगता है कि इस नुकसान का जो भरपाई है उसके लिए लंबा वक्त चाहिए। तो क्या ये हमारे मेंटालिटी के अंदर था कि हमने इस नुकसान को बहुत जल्दी उठा लिया है, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो? आई एम टॉकिंग इंटायर हिंदुस्तान। हमने पूरे हिंदुस्तान में एक नुकसान को बहुत जल्दी उठा लिया विद इन 5 to 6 years, लेकिन वो नुकसान जो था वो बहुत बड़ा है, लुकिंग एट द टाइम पीरियड कि वो 5 ही 6 साल में सारा नुकसान हमें हो गया। तो मेरे ये समझ में आता है कि ठीक है, इंटेलेक्चुअल का एक रोल होगा डेफिनेटली, लेकिन मेरा ये कि क्या कोई ऐसा पॉइंट जो हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विच इज लिटिल बिट एजुकेटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि उनको अपने रोल में, जो एक एग्जीक्यूटिव है, जो एक क्लर्क है, जो एक दुकानदार है, जो एक पान वाला है, जो एक बाबू है, उसका क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में इस बड़े डैमेज को शॉर्ट टाइम में कंट्रोल करने के लिए? इस पे अगर आप कुछ बता सके तो मेहरबानी हो। देखिए, ये शॉर्ट टाइम में होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, और डैमेज ऐसा है कि माइंड पे हुआ है, कि वायलेंस कोई हथियार से नहीं होता है, वायलेंस दिमाग से शुरू होता है, और दिमाग में जो नफरत भरी गई है वो उसका इतिहास 6 साल से ज्यादा पुराना है। आपको बता दूं कि मुस्लिम कम्युनलिज्म, हिंदू कम्युनलिज्म, ये इंडिया में करीब 100 साल से हैं,
और दोनों कम्युनलिज्म खराब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था कि दोनों प्रकार की सांप्रदायिकता बुरी है। मुस्लिम सांप्रदायिकता अलगाववाद की तरफ जाती है, हिंदू सांप्रदायिकता हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहती है। तो ये इसकी फाउंडेशन थोड़ी गहरी है। 6 साल में तो उसका, जैसे कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन देखी। I think we again got disconnected. Asif Saab, we need your help again to call him. Dr. Asif Saab, again we need your help to call him. He's calling him. Okay. Asim, how many questions we have now? We have 2 more questions. मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। स्क्रीन पे हाथ नहीं उठाना है, आपने अपने नाम के अगेंस्ट जाके एंड रेज हैंड करना है, तभी वो नजर आएगा मुझे। आप देखिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। आई थिंक कि आप जो नीचे जाइए, आपके स्क्रीन पे जूम पे नीचे लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट। उस पार्टिसिपेंट को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे एक्सट्रीम राइट पे आपको लिखा होगा रेज हैंड। तो जब वो आप क्लिक करेंगे तो आसिम को फौरन पता चल जाएगा कि यू आर इन क्यू। So please, if you want to ask the question, go click the participant and on the extreme right, it is written raise hand. Do that and you will be in the queue. Thank you. राम साहब आगे कि नहीं आए अभी? अभी नहीं। जितने वक्त मिल गया है कि लोग अपने अपने क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। We have enough time. At least people can frame their question and when he is online. चलिए, अपने राम साहब जो है वो ज्वाइन करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है सऊदी गजेट पर राइट नाउ कि जद्दा में रिस्ट्रिक्शन दोबारा शुरू हो चुकी है। मूवमेंट इन जद्दा विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 3 PM to 6 AM स्टार्टिंग फ्रॉम 6 June until 20th of June। Yes. तो 3 बजे के बाद से जो कर्फ्यू लग गया है। That is from tomorrow। एक राम साहब ने अच्छी खबर दी थी, अच्छा लेक्चर दिया था, दूसरे राम साहब ने ये खबर दे दी। Let me call to Asif Saab. मेरे ख्याल में आसिफ साहब फोन पे उनके साथ। I can see him on the screen। Sir. अस्सलाम, क्या हुआ? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, कर लिए। I think Professor Ram Punyani is trying to reconnect again. He has some technical glitch, so please bear with us then. I think for the benefit of members, there is a shortcut under the screen which is reaction. So reaction pe click karne se you will see a thumbs up and a raised hand. You can also click from there. Asim, have you got enough hands raised already? Yeah, they're there. Punyani sahab aa chuke hain, I believe.
Okay, great. I'm sorry, there is some problem with the internet connection. तो देखिए, ये जो हमारे मित्र का सवाल था उसका तो यही है कि हमारी कोशिशें ज़्यादा होना चाहिए। सवाल है कि जब समस्या बहुत बड़ी है तो हमारे एफर्ट्स भी बड़े होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके सिवा तो मैं इसका कुछ जवाब नहीं दे सकता, पर इतना ही है कि प्रॉब्लम भी बहुत पुराना है, 6 साल में तो एकदम एक्सप्लोड हो गया है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you, Bhayan Sahab. The next question is from Rehan Khan. Hello. Thank you, Dr. Punyani sir, for your wonderful time. सर छोटा सा सिंपल क्वेश्चन ये, जो इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन अभी देखने को मिल रहा है कुछ टाइम से, आई मीन ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, जिस तरीके से नीचे जा रहा है, आप इसका देख रहे हैं कि मतलब ये और नीचे पहुंच गया है बिल्कुल, या इससे नीचे भी स्कोप है? अभी जैसे राज्यसभा के इलेक्शन में एक नया ही तरीका शुरू हो गया है, एमएलए को खरीद लीजिए और उनको रिजाइन करा दीजिए। तो व्हाट डू यू थिंक, आई मीन हाउ वेयर वी आर गोइंग इन दिस? पीएम केयर्स फंड है ना एमएलए खरीदने के लिए। एनीवे, अभी तरीका क्या है, आपको एक बात बताऊं, मैंने आरएसएस का डिटेल आपको नहीं दिया। आई डोंट नो वेदर दैट वाज रेलेवेंट, पर आरएसएस ट्रेंड बहुत सारे लोग, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी इसमें अंदर से गए हुए हैं। और जिस प्रकार से, जैसे हमारे पिछले मित्र ने कहा 6 साल का मामला, तो 6 साल के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनसे डिसएग्री करता है वो एंटी नेशनल है। कोर्ट में ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जिनका बायस बहुत क्लियर है। तो इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन तो बहुत है, एंड आई थिंक ओनली ए चेंज ऑफ रेजीम मे हेल्प रिवाइविंग डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ। अभी तो हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है, जिसमें जुडिशियरी हैज़ इट्स ओन से एंड एग्जीक्यूटिव हैज़ इट्स ओन से, वो अभी तो नहीं है। अभी तो जुडिशियरी टू ए ग्रेट एक्सटेंट which is supposed to defend the constitution is missing in action. So I have also the same concern that our institutions are becoming weaker, and I don't know, probably a bigger political efforts are needed to see that the type of government which can respect the autonomy of institutions, where the infiltration, there is an issue of infiltration also. People who are not really committed to Indian constitution, many of them have infiltrated into the system, and that complicates the problem. So your worry is my worry, but my solution is only this: probably a strengthening the political forces which stand by the constitution. We don't do this. Strengthening these forces, I think, is important. So there are many independent activists, and there are many political parties which at one level are committed to the institution. So I think the only solution I have got is that we strengthen them in whatever way possible. Thank you. Ji. Our next question is from Murtuza Siddiqui Saab. Unmute कर दें। जी कर दिया। Good evening, sir. Thank you for your inspiring lecture. और मैं आपके वीडियोस काफी इस पे यूट्यूब पे देखती रहती हूँ। मुझे ये करना है कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब हैं, तो उनके भी वीडियो काफी हैं यूट्यूब पे, और वो भी ये मुगलों की हिस्ट्री बताते रहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा नफरत फैल रही है। उसी वजह से ही मुसलमान और हिंदू अलग हो रहे हैं आजकल। तो कभी क्या आपके उनसे कोई डिबेट्स हुई है, या कोई करना चाहेंगे कोई सेमिनार उनके साथ? मिस्टर मैं करना चाहूँगा। I don't mind, but I'm not very well known. Probably nobody invites me for big talks and all that. But I won't mind talking to anybody on this issue. Or of course, I'm not a historian. I have picked up. I am trying to look at history from an objective, rational angle. Barring that, I may not have all the details, but broadly, I would like to talk to anybody who wants to discuss the history. Thank you, sir. Thank you so much. प्रोफेसर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, वो ये कि जो हेट्रेड है, द नेगेटिविटी है, वो इतनी ज्यादा आ चुकी है, एंड स्पेशली इन द यंगर जनरेशन,
देखा ही जाता है कि as young as 12-year-old and 13-year-old has become too communal, and when they go to school they talk about divisive politics कि तुम्हारा मजहब ये है, मेरा मजहब ये है। तो हम अपनी तरबियत में या अपने बच्चों की तरबियत में ऐसा क्या काम करें जिसकी वजह से ये हेट्रेड खत्म हो जाए? जी देखिए, ये इसमें ऐसा है कि पूरा माहौल जो दुनिया में भी है वो इसको प्रमोट कर रहा है। हम यही कर सकते हैं कि बचपन से जब वो एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर आते हैं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो इंडियन हिस्ट्री का है, जो मैंने आपको बताया हिंदुस्तान की कहानी, जिसमें मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख मिलजुल कर हमने कैसे अपनी सभ्यता को बनाया, अपनी इसके कॉन्क्रीट एग्जांपल अगर हम अपने बच्चों के साथ रखेंगे शुरू से ही, क्योंकि देखिए नफरत फैलाने का काम बहुत आसान है और मोहब्बत फैलाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा आज हो चुका है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हमको मेरे ख्याल से इस पे स्पेशली फोकस करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस फोकस ऑन दिस। जो पेरेंट्स, जैसे आप बात कर रहे हैं, देयर आर मेनी पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन ग्रो अप, हाउ मेनी ऑफ दोस पेरेंट्स टेक दिस सीरियसली, वो भी मेरे सामने एक डाउट है। इसलिए मैंने एक अपने जवाब में कहा कि हमारी भी तो क्लैरिटी होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो बी एबल टू कन्विंस अदर्स। हम कैन वी कन्विंस अदर्स? We can convince others only when we are well equipped with the basics of history, with the basics of human nature, human society, that love thy neighbor or take care of your neighbor's need, or Vasudhaiv Kutumbakam. When we get very clear about it and we start respecting the morality of religions, I think the task will become easier. But I agree with you, not many people are giving concern to this. Without that, that problem cannot be sorted out. Fair enough. Our next question is from Athar Rasool Saab. सर आपने अपना खुद लॉक कर रखा है क्या? Because I'm unable to unmute you. Athar, he has to. I think Athar is okay. Now go ahead. Thank you sir for your informative lecture. सर मेरा ये एक सवाल है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल है। एज एन इंडिविजुअल हम हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा लड़का मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो, फिजिक्स स्ट्रांग हो, इंजीनियर बने, एमबीबीएस क्वालिफाई करे, लेकिन मोरल साइंस के सब्जेक्ट पे उसकी पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट की भी कोई वो नहीं होती। इथिक्स पे कोई वो नहीं है कि पेरेंट्स भी इथिक्स सिखाएं कि सच क्या है, हक बात क्या है। आज देखिए उसी का नतीजा है कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई किसी की पिटाई हो रही होती है सड़क पे, लेकिन वो वीडियो बना के पोस्ट करना उसकी प्रेफरेंस होती है, ना कि उसकी हेल्प करना। तो ये जो स्कूल्स में मोरल साइंस, इथिक्स, इवन रिलीजियस स्टडीज जो है, हर मजहब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे तमाम मजहब जो है वो अच्छी एजुकेशन देते हैं, इथिक्स की, सच की बात करते हैं, हक की। तो रिलीजियस स्टडीज भी मजहबी लोग भी और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को वो मजहब सिखाएं कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, जो वहां शिकागो में लेक्चर दिया, तो उन्होंने जो बात कहा वो लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के नाम पे हैट्रेड फैलाना जानते हैं। सिख मजहब में देखिए जितना लंगर चलाते हैं सिख मजहब, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस मजहब के लोग खा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो भी सिख मजहब की प्रीचिंग्स हो, तो ये मोरल साइंस और इथिक्स को पेरेंट्स को चाहिए कि पढ़ाएं अपने बच्चों को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि किस जो भी उनके कॉलीग्स हों या स्टूडेंट्स हों, फ्रेंड्स हों सर्किल में। तो ये मेरा आई एम फुल्ली एग्रीइंग विथ यू। मुझे एक ही उसमें कहना है कि एक तो जनरली रिलीजन की हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो रिलीजन के अंदर भी जो मॉरलिटी है, मॉरलिटी विच प्रमोट्स लव, उस पे हमारा ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। और वो काम अगर पेरेंट्स करेंगे तो आई एम श्योर जो हेट्रेड बाहर से समाज में फैल रहा है उसका एक बहुत अच्छा काउंटर होगा। तो आपके सवाल के पहले भी मैंने यही कहा था कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि मॉरलिटी, रिलीजन को लोग ने क्या किया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, हिंदू विथ मुस्लिम
हिंदू विथ क्रिश्चियन, ये जो बात है, और उसमें जैसे हिंदुइज्म अगर कहता है वसुधैव कुटुंबकम, तो इस्लाम कहता है अपने पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल करो, क्रिश्चियनिटी कहते हैं लव दाई नेबर। तो मुझे तो उसमें फर्क नहीं दिखता। तो यही चीजों को प्रमोट करना ये पेरेंट्स का काम है। इफ स्कूल्स एंड कम्युनिटी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट डूइंग, तो उसके लिए हमारी खुद की क्लैरिटी, अगेन द होल प्रोसेस बिगिंस विद द सेल्फ। कैन आई कन्विंस 10 of my friends that Akbar and Rana Pratap did not fight for religion, they fought for power? Can I convince 10 people that Aurangzeb might have killed his brother Dara Shikoh, but Nepal's king also killed his brother for that? Ashok also killed his brother for power. So when these things are mixed up and presented selectively, this is a second big problem, selective presentation. Now, king may be good, king may be bad. Now, Aurangzeb, you selectively pick up 3 things. He killed his brother. He destroys this temple. So, Muslims are like, first is this, how are today's people related to the nature of the kings? Kings were good, kings were bad in all religions. So, question is, this is what I think you are making a very valuable point, that parents in particular need to imbibe these things so that they can pass it on to the next generation to save the human value. And here I also must say one thing, that somehow indirectly humanity has achieved its highest level in the form of United Nations charters. Yes, we have once again the connectivity issue. Yes, I think so. I think what is the time remaining, Asim, for the session? 2 to 3 minutes, 5 minutes more? Yeah, 3 to 5 minutes we have. We have one more question basically left. लेकिन राम पुनियानी साहब हैं, वीडियो तो इनकी ऑन है, लेकिन आई बिलीव कनेक्टिविटी लो है. अच्छा. We have one more question, right? जी. Okay. तो मैं समझता कि फिर से हम लोगों को डॉक्टर आसिफ साहब की मदद चाहिए. Dr. Saab, we have one more question left, and then we will we'll finish the program. So if Mr. Ram can log in again, please. I guess वापस आ गए. Sorry, I think the internet connection is quite unstable here. I may have to make some arrangements. So anyway, that's what I had to plead basically. All right, our next question is from Nuruddin Saab. Unmute करें Nuruddin Saab. जी, अब आवाज आ रही? जी जी जी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल लेक्चर. हमें उससे बहुत बेनिफिट मिला, हमने उसको बहुत गौर से सुना, और आपके जो ऑडियो है हम लोग यूट्यूब पे सुनते रहते हैं. मेरा कहना ये है कि मुसलमानों ने हमेशा, और अगर आप हिस्ट्री देखें, बहुत बात की, उसमें हमेशा सेकुलरिज्म की मिसाल कायम की है. जैसा रामपुर का नाम रामपुर है, जबकि वहां पर मुसलमानों की हुकूमत 250 साल रही. सीतापुर अवध के अंडर रहा, जहाँ कितनी लंबे तक मुसलमानों की हुकूमत रही. उसके बाद अगर आप आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की देखें, जिसमें लाखों मुसलमानों ने जान दी और लाखों उलमाओं ने जान दी, और हमारी कुर्बानियां और हमारा जो मुल्क के साथ जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा. तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, उसको अगर हम रिवाइव करें, क्योंकि नई जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि आप इस काम को कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं. जी. देखिए, हमारे एक दोस्त हैं शमसुल इस्लाम. शमसुल इस्लाम की एक बुक शायद इंटरनेट पे अवेलेबल होगी,
रोल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। तो वो बुक में वो पूरा बताते हैं कैसे जो इम्प्रेशन है कि फ्रीडम मूवमेंट में मुसलमान नहीं थे, उसको पूरी तौर से वो प्रूफ बाय प्रूफ वो उसको निगेट करते हैं। ऐसे एक और भी बुक है जो इसी इश्यू पे है, वो मेरे ख्याल से उसका जिस्ट हमको सर्कुलेट करने की जरूरत है। तो आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए शम्सुल इस्लाम रोल ऑफ मुस्लिम्स इन फ्रीडम मूवमेंट। एक दूसरा जो मैंने कल्चर की बात बताई जो सोहेल हाशमी साहब का वो जो वीडियोस बताए ना हिंदुस्तान की कहानी, तो यही बताते हैं कि हिंदू कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया के कल्चरल डेवलपमेंट में। तो ये चीजें नीडेड। I hope I'm audible. Now you're audible. Yes. Yeah. Okay. So I'm just repeating. Sure. शम्सुल रोल ऑफ मुस्लिम्स इन फ्रीडम मूवमेंट, वो जरा सर्च कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्टली डिटेल्स। दूसरा सोहेल हाशमी की सीरीज, ये दो में अगर वैल्यूज तो मुस्लिम्स के खिलाफ जो प्रेजुडिसेस है कि दे हैव नथिंग टू डू मुस्लिम इंटरेक्शन, और पार्टीशन पे भी खैर कभी हम वी कैन हैव ए सेपरेट सेशन। पार्टीशन कोई मुसलमानों के कारण नहीं हुआ, मेनली इट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और मुस्लिम लीग में जो थे दैट वाज एलीट मुस्लिम्स, हिंदू महासभा में जो थे दैट वाज एलीट हिंदूज। So that is a combination of those factors which people have started believing, because the counter ideology was not reached to the people. The proper ideology was not reached to the people. उसके कारण ये misconceptions है जो मेरे ख्याल से it is very important that we counter that. All right, thank you so much. And with this, we come to the end of the Q&A session with Professor Ram Punyani साहब. और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेहान साहब से कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें. Assalamu alaikum everyone. I would like to thank Dr. Ram Punyani, our president, Mr. Azizur Rab साहब, और entire NIF XCOM को, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना एक शानदार सेशन हम लोगों के लिए अरेंज किया. It was overwhelming to hear the views of Dr. Ram Punyani. Thank you very much, sir, for enlightening us with your valuable views on the most burning issues in our society these days. Thank you very much for all attendees from the NIF and our guests, which are part of this this session. Thank you, everyone. Thank you. Thank you from my side. Thank you. I think thanks to all for joining this session, and I'm thankful to Dr. Ram Punyani for giving his precious time. And we had a good session, and we hope that we'll keep on doing so. I'm again thankful to Dr. Muhammad Asif, who has arranged, who has been instrumental in this program. Thank you all again, and let us have a good weekend. There is a little bit unpleasant news from Mr. Ram Iyer, but we have to live with that there will be another curfew. So let's enjoy, stay home, stay safe, and thank you all again. Bye-bye. Thank you very much. Thank you.